Good morning, sir. Good morning, ma'am. Morning. Can you hear me? Morning, Good sir. morning. You are comfortable? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? So, I request Shifan to start the session. Okay. Good morning, everyone. Today, I, Kishan Nigam, welcome you all on the behalf of IITM, IIMT College of Management. A huge welcome to our today's guest speaker, Dr. Saurabh Gupta. A warm welcome to Dr. Abhin Bakshi Bhatnagar, Director, IIMT College of Management, Dr. Vivas Singh, ED Cell Chairperson, and all deans, HODs, faculty members, and students of IIMT College of Management. Today, we all have gathered virtually to discuss about a very important topic, which is business idea generation. Our today's speaker is very renowned personality in the field of business analytics and research. Dr. Saurabh Gupta is an accomplished scholar practitioner with over 18 years of proven experience in business analytics, research methods, learning and performance improvement, counseling, teaching, and research administration. He has served as a consultant and a trainer to a wide variety of profit and non-profit organizations. He holds academic degrees in human resource management, economics, and psychology. He has received a doctoral degree in human capital development from the University of Southern Mississippi, USA. He is a certified MBTI FIROB, balanced scorecard, competency modeling, and return on investment methodology practitioner. Now, I will not take much time of you, sir, and would like to request you to please join. Over to you, sir. Thank you very much for giving me this opportunity. And thank you, Dr. Vivas Singh. Thank you to the management and administration of IIMT and students as well. I'll start. I have a very small discussion, so we'll hope I'll try because you are talking to means regularly talking about entrepreneurship and entrepreneurship development. So I'll try to focus on one element, business idea generation. So we will discuss on that a small characteristics जो हमें चाहिए उसको करने के लिए. Then we will move to do one simple model, or we will try to practice that model and hope that I expect that you everyone try to implement and practice during this session. I'm just sharing my slide. Can you see the screen? Yes, sir, it's visible. Okay. So going with that, आपको you all everyone know that business every business starts with an idea, and the idea that leads you to the your functions. So सब कुछ सारा कुछ इसी पर डिपेंड करता है. अब डिपेंड ये करता है कि आइडिया आप कैसे बनाओगे, आइडिया कितना इफेक्टिव होना चाहिए, आइडिया इफेक्टिव है भी या नहीं, क्योंकि बिकॉज रिसर्च सेज दैट 80% ऑफ द बिजनेस आइडिया जो है वो सब आपके बिजनेस आइडिया क्लोज हो जाते हैं या बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल नहीं होते हैं विद इन 2 years ऑफ इट्स इंसेप्शन. रीजन यही होता है कि या तो पुअरली डिफाइंड है, पुअरली प्लान्ड है, या गलत एरिया में चले गए, या किसी दूसरे डिफरेंट मार्केट में चले गए जहां नहीं जाना चाहिए था. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डिजाइन, थिंक, plan and take an action for your future. Beginning with that, there are few things that you have to remember. सबसे पहली चीज तो आइडिया, इवोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट. सबसे पहली चीज, कोई भी बिजनेस आइडिया है वो इवॉल्व होता है, वो रिफाइन होता है. मतलब कोई ऐसा नहीं आप एक बार में सोचा कि अगर मुझे मान लीजिए अगर फॉर अ टाइमिंग अगर आप सोच रहे हो मुझे चॉकलेट बनाना है, ठीक है, तो आप चॉकलेट बनाना है तो आप ये सोच रहे हैं चॉकलेट प्रोड्यूस करना है, उसको मार्केट करना है, उसकी एक यूनिट आपको डालनी है. देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कितने का बनेगा, कहाँ बनेगा, कौन बनाएगा, कितनी यूनिट होंगी, कौन काम करेंगे, उसको कैसे मैं बेचूंगा. धीरे धीरे उसमें यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, यू हैव टू स्टार्ट मींस चैलेंजिंग योरसेल्फ. जब आप उसको चैलेंज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तभी आप उसको और इंप्रूव कर पाएंगे. तो ये पूरा फेज है, इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि जो अभी मैंने आइडिया सोचा है वो परफेक्ट है. परफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट उसमें नेसेसरी है.
तो ये कंटिन्यूसली रिफाइन होता है, ठीक है। एंड रिफाइन आप इसके जो आपका पूरा कंप्लीट बिजनेस है, जस्ट अ सेकंड, हेलो हेलो, हेलो, या कैन Yes, यू, sir. Yeah, या मैं ऑडिबल हो yes. सर? ये एक्चुअली ये पीछे जो लॉबी का वो नोटिफिकेशन बार बार आ रहा मेरे पास, तो उसकी जो वो, कैन यू म्यूट दैट? I'll try, sir. I'll try. Joining के लिए permission के लिए आ रहा होगा ना? हाँ हाँ, people are waiting in lobby, return to the main meeting to see who is And waiting. let me do that. I'm just calling you. Okay, thank you. So looking into that, like this is your, like if you take, this is your business idea. अब इस आइडिया के साथ दिस इज योर कंप्लीट बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें कस्टमर भी है, आपका पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट भी है, जिसमें आपके कंपटीटर्स भी हैं, जिसमें आपके प्रोसेस या मेथोडोलॉजी भी है। तो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली विद इन दैट, और यही आपका आइडिया स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट भी बनता है, जिसमें कस्टमर भी है, कंपटीटर भी है। यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज एरियाज, यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेस एंड डिफाइन एंड रीडिफाइन योर आइडिया। अब हो सकता है चॉकलेट में अगर आपने पूछा या चॉकलेट बना रहे हो तो उसमें एक आइडिया एडिशन ये भी हो सकता है कि आप कोई फ्लेवर लाओगे, कोई पर्टिकुलर फ्लेवर नहीं लाओगे, या ऐसा हो सकता है कि चॉकलेट का साइज कितना होना चाहिए, कितने ग्राम का होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, क्या प्राइस। वो आइडिया किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी उसकी आइडिया की हो सकती है। देन यू हैव टू बी observant for your environment. So this continuously when you see customers, इनको क्या चाहिए, क्या नीड्स है, कौन कौन सी नीड्स इसकी बनी है, कौन कौन सी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड अनमेट डिमांड्स। इसके लिए एक देयर इज वन मोर थिंग दैट यू कैन डू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, कस्टमर प्रॉब्लम्स। यू कैन थिंक ऑफ योरसेल्फ, मींस थिंक योरसेल्फ एज ए कस्टमर। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको चाहिए और आपको नहीं मिल रही है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको जिनको आप सॉल्व करना चाहते हो, या किन चीजों की वजह से आपको प्रॉब्लम। लाइक जब मैंने पहली बार चॉकलेट खाया था या मैं चॉकलेट खाता हूं तो मुझे चॉकलेट में क्या पसंद है, कौन सा फ्लेवर पसंद है, कौन सा फ्लेवर मुझे नहीं पसंद है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे जो आसपास के कलीग्स हैं, लोग हैं, उनको कौन सी किस तरीके की चॉकलेट फ्लेवर पसंद है या कौन सा रैपर पसंद है, वो क्या बोलते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके आसपास जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑब्जर्व करनी है, कलेक्ट करनी है, उसको एनालाइज करना है, उसको सोचना है। क्योंकि सारे लोग वही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप, अच्छा कोई भी बिजनेस आपका कमरे के अंदर बैठ के प्लान नहीं होता। उस बिजनेस के लिए आपको कनेक्ट करना पड़ता है उन सारे स्टेक होल्डर से, उन सारी सोर्सेस से जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वेयर यू वांट टू सेल इट, जिनको इनको भेजना है। तो आपके कस्टमर है, आपके गवर्नमेंट है, आपको ये भी देखना होगा कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है। आपको ये भी देखना है कि आपको जो मैन पावर है, जिस यूनिट के लिए मैन्युफैक्चरिंग मैन पावर, वो आपको आपके एरिया में मिल पाएगी भी कि नहीं मिल पाएगी। अगर मैन पावर मान लीजिए आपने, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप ग्रेटर नोएडा में यूनिट लगाते हो, और ग्रेटर नोएडा की यूनिट के लिए मैक्सिमम जो काम करने वाले लोग हैं वो आपके दिल्ली से आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, या किसी और जगह से आ रहे हैं, तो नेचुरली उनके लिए सैलरी या उस तरीके पेमेंट इस तरीके से होना चाहिए जिसको वो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग निकल पाए, वो वहां पर रिटेन कर सके, काम कर सके। नहीं तो दूसरी और यूनिट्स है वो वहां भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसे मशीन्स है, आप मशीन्स लाओगे, मशीन्स आपको अगर बाहर से लेनी है तो उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, कितना आपको टैक्सेस देने हैं, या उसका मेंटेनेंस कितना है, क्या उसका कोई लोकल ऑप्शन हो सकता है। दीज आर द थिंग्स। जब आप अपने आए बाय देखोगे, ये जब आजू बाजू देखोगे, मीन्स द पीपल अराउंड यू, देन यू सी योर कंपटीटर्स हाउ दे आर डूइंग, what they are doing, what how they are producing the chocolate, you will try to collect those information। जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो इन सारे एनवायरनमेंट के बारे में। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए अब कई बार ये लगता है कि नहीं, मैं अपना आइडिया अपना शेयर नहीं करूंगा, अकेले से आप ब्रेन स्टॉर्म नहीं कर सकते, तो आपको एक पीयर ग्रुप, एक स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप आपको बनाना ही पड़ेगा, या तो अपना या अपने फैमिली में जो भी है, जिस एक या दो लोग, तीन लोग, चार लोग ऐसे जो क्लोज हो, जिससे आपको लगता है कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट हो कि ये मेरा आइडिया डिस्क्लोज नहीं कर सकते, या मेरा ये आइडिया किसी और को नहीं बताएंगे या इन्हीं तक रहेगा, तो देन यू कैन स्टार्ट डिस्कसिंग विद देम और ब्रेनस्टॉर्म करो। क्योंकि जितने ओपिनियंस आएंगे, क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, जितने ओपिनियंस आपको मिलेंगे तब आपको मिलेगा। अच्छा, एक बार इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में कई बार होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक प्रोसेस है,
उस ब्रेनस्टॉर्मिंग को दो तरीके से आप कर सकते हो। वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हेन यू गो डायरेक्टली, लाइक मैं चॉकलेट बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा, कैसी बनानी चाहिए, क्यों, मतलब कौन सा फ्लेवर होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सी प्राइस होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, कहाँ यूनिट बनेगी, कितने लोग बनेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट मुझे लगाएगा, कहाँ से मुझे लोन मिलेगा या कहाँ से मुझे फाइनेंसिंग और फंडिंग होगी, ये सब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो। एक होती है रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग आप उसका अपोजिट डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दो। अगर मैं ये कलर मींस, अगर मैं मान लीजिए मार्केट में 100 ग्राम की चॉकलेट आ रही है 20 रुपीज की या 25 से फॉर एग्जांपल 70 रुपीज की, तो अगर मैं 70 रुपीज की 100 ग्राम नहीं बनाऊं तो क्या होगा? अगर मैं मिल्क फ्लेवर ना दूं, अगर मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ना दूं, अगर मैं ये फ्लेवर ना दूं तो क्या होगा? तो उसको आप रिवर्स डायरेक्शन में, अगर मैंने यूनिट, आपने सोचा ग्रेटर नोएडा में यूनिट लगाने का, अगर मैं ग्रेटर नोएडा में यूनिट नहीं लगाऊंगा तो मैं कहां लगाऊंगा? तो जब आप रिवर्स डायरेक्शन में ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स कई बार डिफरेंट डायरेक्शन से देखना शुरू कर देते हैं, एंड देन यू कैन कलेक्ट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। धीरे धीरे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी कि एक तो यह है कि solve thinking to solve the problem, second way is thinking how the problem occurred। so ये एक रिवर्स प्रोसेस है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम, एक आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट हुई वो आप रिवर्स डायरेक्शन। तो कई बार अपोजिट डायरेक्शन में कि प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट हुई तो आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। और आपका ये बिजनेस कोई नहीं, आप पर्टिकुलर एरिया में, आप प्रोडक्ट में, आप किसी में सोचो, से फॉर एन एग्जांपल आजकल ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन ये सिस्टम आ रहा, तो ऑनलाइन एजुकेशन क्यों करेंगे लोग, या ऑनलाइन पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, या उसके क्या बेनिफिट हैं? अगर ऑनलाइन नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा? तो आप जब इन सब दोनों डायरेक्शंस में उनको ढूंढना शुरू करेंगे तो देन यू विल फाइंड मोर एंड मोर ऑप्शंस। आपको आपकी कॉस्ट का पता चलेगा, आपको रिसोर्सेज का पता चलेगा, आपको टेक्नोलॉजी का पता चलेगा, देन यू कलेक्ट डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। then challenge your assumptions, this is one of the very important element, means सारे important है but ये this works as a barrier। assumptions है, नहीं मैं नहीं बना सकता, या मैं, इतने सारे लोग हैं या इतने सारे चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, या आदमी कहाँ से लाऊंगा, नहीं मेरे घर में किसी ने नहीं किया है, मैं अकेला बिजनेस कैसे कर लूंगा, या पैसे नहीं मिलेंगे, सरकार को इतना टैक्स मिलना देना है, या सरकार की ऐसी स्कीम्स है जो मुझे फेवर नहीं कर रही तो मैं कैसे चलाऊंगा, या मुझे इतनी फंडिंग नहीं मिल, ऐसे जो बेसिक अजम्पशंस आपने लगा रखे हैं, या ये अजम्पशन है कि प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज, बट एक अजम्पशन है कि एक जॉब है, आपको कंप्लीट वन टाइम सैलरी आपको मिल रही है, या गवर्नमेंट जॉब है आपकी सिक्योर है, आपको वो सारे अजम्पशंस तोड़ने पड़ेंगे। जब आप उन assumptions को ब्रेक करोगे तभी आप अपने आप को रिस्क में डालोगे। रिस्क ही है, बिजनेस है सारी लाइफ में, तो जब उस रिस्क में डालोगे तब आप उसको ढूंढना शुरू करोगे, उसके ऑप्शन सर्च करोगे, जब ऑप्शन सर्च करोगे तो देन यू विल फाइंड योर गोल एंड योर वे ऑफ रीचिंग टू दैट पर्टिकुलर गोल। ठीक है, तो दीज आर फ्यू थिंग्स। कोई भी आइडिया जब जनरेट करना है या जनरेट हो रहा है या उस पूरे प्रोसेस में, ये कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज तो ये, कोई भी आइडिया अपने आप एक बार में परफेक्ट नहीं होता, वो आइडिया धीरे धीरे इवॉल्व होता है और रिफाइन होता है। दूसरा, आपको उस इन्वायरमेंट में रहना है जहां से आइडिया स्टिमुलेट हो रहा है, वो इन्वायरमेंट आपका इंफॉर्मेशन आजकल सबसे बड़ी हो। और थैंकफुली हम इंडस्ट्री 4.0 में रहते हैं जहां पर आपका पूरा आईटी और ये सब कुछ है, आपका कनेक्शन है, आप मोबाइल फोन है, आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हो। बट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा करेक्ट सोर्स है जहां से आपको राइट इंफॉर्मेशन पता चलती। बी ऑब्जर्वेंट, अपने आसपास देखो, जितने भी लोग हैं क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन कौन सी चीजों को प्रेफरेंसेस देते हैं, कौन सी चीजों को प्रेफरेंसेस नहीं देते हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो, लोग क्या क्या सॉल्यूशंस उनको दे रहे हैं। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो जो भी हैं आपके आसपास, और उनमें से कौन सी ऐसी हैं जो अनमेट डिमांड्स हैं, जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई हैं, या आप उनको फाइंड आउट, बहुत मान्यूट डिमांड्स भी हो सकती। एक ब्रेन स्टॉर्म करो लोगों के साथ में, अपने साथ में, जो भी आपका अपना स्मॉल एक स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप बना के उनके साथ ब्रेन स्टॉर्म कीजिए, एंड देन चैलेंज योर assumptions। तो ये सब ये कुछ 5-6 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अपने आइडियाज को कलेक्ट करने के लिए। कोई क्वेश्चन, इतनी बात समझ में आई या कोई सवाल इतने में? एनीवन? Sir,
you will miss this opportunity because all are mute. Oh, okay. Okay. You know? So not possible because once then the number of voice comes, that becomes difficult to conduct the session. Oh, yeah. In last, we will open. Oh, okay. Okay. Thank you. Thank you. So I believe there is one option. अभी recently इंडिया ने भी स्टार्ट किया है. वैसे तो बहुत पुराना चल रहा है. I suggest you all इसमें सोनी टीवी में शायद आता है शार्क टैंक. शार्क टैंक का इंडिया वर्जन स्टार्ट हुआ है अभी. लेकिन शार्क टैंक बहुत समय से आ रहा है, मैं तो काफी पहले से देख रहा हूँ. इसके कई अलग अलग वर्जन है. उसको जरूर देखना, उसमें आपको बहुत सारे बिजनेस आइडिया मिलेंगे. वो प्रैक्टिकल है. वहां पर आपके वो बिल्कुल मैनिपुलेटेड नहीं है. ना कुछ भी. वहां पर इन्वेस्टर्स हैं और वो इन्वेस्टर्स आपको वो रियल इन्वेस्टर है, सारी रियल सिचुएशन है. तो अगर आपको और पुराने एपिसोड देखना है तो यूट्यूब में जाइए या पूरा गूगल करिएगा, आपको उसके ओरिजिनल अमेरिकन वर्जन में मिल जाएंगे सारे पुराने एपिसोड. बहुत पुराना सीरियल है ये शार्क टैंक. अब इंडिया में है नेचुरली. अब इसकी वजह से हो सकता है होपफुली, क्योंकि अभी जो कोविड के टाइम में और ये सारी सिचुएशन में स्टार्टअप्स बहुत आए हैं, बहुत लोगों ने आइडियाज जनरेट किए हैं. और शार्क टैंक इंडिया और इस टाइप के जब ऑप्शंस और दिखाई पड़ने लगेंगे तो ये प्रमोशन और हो जाएगा और लोगों को पता चलना चलेगा. तो जाहिर सी बात है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको स्टॉप कर देती हैं. एक तो ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा बैरियर है कि मैंने बिजनेस बनाया, यार पैसा कहाँ से मिलेगा, या मशीन में कहाँ से खरीदूंगा, या मैं इसको कैसे बनाऊंगा. ऐसी बहुत सारे जो सवाल है वो हमको रोक देते हैं. यही वो एजम्पशंस भी बन जाते हैं. फिर अरे नहीं यार, वहां कौन जाएगा, उस जगह पे जाके उससे कौन पूछेगा जाके. नहीं, यू हैव टू गो, यू हैव टू सर्च अगर आपको कुछ करना है तो. क्योंकि बहुत सारे मोटिव उसके साथ में आपको मोटिवेशन अपना फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वही मोटिवेशन आपको ड्राइव करेगा आपको अपने बिजनेस आइडिया को जनरेट करने में. मोटिवेशन आपका ये हो सकता है कि इंडिपेंडेंस, मैं अपना मालिक खुद बनना चाहता हूँ. बहुत हो गया नौकरी हो, ये बहुत सारी चीजें, मैं अपना खुद अपना बॉस बनना चाहता हूँ. आपका मोटिवेशन ये हो सकता है कि आई वांट टू सर्व द सोसाइटी, कि कुछ करना चाहते हो. तो बहुत सारे एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्व कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से. कोई भी आपका आइडिया हो सकता है, या आपका मनी मेकिंग भी आइडिया है ऑफ कोर्स, क्योंकि रेवेन्यू, हर बिजनेस के अंदर रेवेन्यू तो होना ही चाहिए. जब पैसा नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से चलेगा. वो किस फॉर्म से आ रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा, कि आप जनरेट कर रहे हो, डोनेशंस आ रहे हैं ऐसे. और फिर वो नेचुरली जितना भी आपका मॉडल है वो आपका गवर्न होगा. तो किसी भी बिजनेस के अंदर रेवेन्यू मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो अगर आप उस सीरियल में भी जाओगे तो वहां पर देखोगे रेवेन्यू मॉडल ही सबसे ज्यादा वो फोकस होता है, क्योंकि पैसा नहीं तो बिजनेस नहीं. बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि पूरा उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं मतलब सब कुछ आपको उसको स्टैंड करने के लिए, रन करने के लिए, फ्यूचर देखने के लिए सब पैसा ही पैसा आपको चाहिए होगा. ठीक है, वो अलग बात है कि प्रॉफिट मेकिंग आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता अल्टीमेटली. वो एक अलग चीज है. जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है. लेकिन उनको रन करने के लिए वो साइकिल तो चलेगी ना. वो पैसा आता है, वो इन्वेस्ट होता है, मतलब हम उसमें से कुछ कमा नहीं रहे, लेकिन जो है उसी में रन होता चला जा रहा है. पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए वो चीजें, वो पूरा मॉडल पूरा बना होता है. ठीक है, ऐसे ही मीन्स आपका मोटिवेशन टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाने का हो सकता है. आपका मोटिवेशन फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हो सकता है. जैसे रिसेंट टाइम में अभी रिसर्च है, मैं पढ़ रहा था. तो अभी इस कोविड के टाइम में रिसर्च किया गया था, तो बहुत लोगों ने इस समय प्रेफर किया फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स को. तो एंटरप्रेन्योरशिप कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, क्योंकि जॉब में तो वो नहीं होगा कि ये सिचुएशन नॉर्मल होगी बहुत जल्दी और सब ऑफिस में जाएंगे तो फिर वो सिस्टम आ जाता है. लेकिन कई सारे ऑर्गेनाइज, एक ऑप्शन लोगों को दे दिया गया वर्क फ्रॉम होम का, एक ऑप्शन लोगों को मिल गया फ्लेक्सिबल, और इसको अडाप्ट कर सकते हैं बहुत सारे सिस्टम. तो ये पूरा एक मॉडल है. तो इसी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन और ये कई सारे सिस्टम्स डेवलप हो गए. आपको सोचना है तो ये एक बहुत अच्छा इस समय टाइम है, उसमें आप आइडिया जनरेट करो. तो कंपटीटर्स तो आपको सब जगह मिलेंगे. तो उसमें आपका आइडिया हो सकता है सेम प्रॉब्लम सेम सोल्यूशन, मींस आप रेप्लिकेट कर रहे हो सेम प्रॉब्लम क्या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और सेम सोल्यूशन है. वही जो वेजूस दे रहा है, वही आपका यूडेमी दे रहा है, वही कोर्सेरा दे रहा है, वही आपका एड्यूसर्व दे रहा है, वही सारी चीजें आपको मिल रही. तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट, ये आपके लिए चैलेंज बन जाएगा. कंपटीशन है, तो वहां पर से वो जब आप आएगा, जब आप उसको ब्रेनस्टॉर्म करोगे, जब आप उसको डिस्कस करोगे लोगों के साथ में, तो आपको पता चल जाएगा उसमें से कौन सा ऐसा एरिया है जिसको हम चूज कर सकते हैं. चल सब रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना किसी एक की वजह से कोई दूसरा रुक गया. लेकिन आप उसे डिफरेंशिएट करोगे कहीं ना कहीं पे, जिससे आपको मार्केट एस्टेब्लिश करना. आप मार्केट करोगे, एडवर्टाइज करोगे अपने उस आइडिया को. तो जब आपका आइडिया, क्योंकि आपका आइडिया जब प्रमोट होगा तभी सेल होगा, जब सेल होगा तभी आपके पास रेवेन्यू आएगा.
ठीक है, आप ये भी कर सकते हो सेम प्रॉब्लम डिफरेंट सोल्यूशन। तो सेम प्रॉब्लम डिफरेंट सोल्यूशन में होगा कि चलो अब ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो ठीक है, हम इस डायरेक्शन में सोचते हैं कि भाई हम सारे के सारे जितने भी कोर्सेज प्रोग्राम करेंगे वो सब प्रैक्टिस ओरिएंटेड होंगे, हम थ्योरी कुछ नहीं पढ़ाएंगे। डिफरेंट सोल्यूशन है, पढ़ाना तो आपको है ही है लेकिन आप स्किल ओरिएंटेड कर लो, तो उसमें फिर आपके पास एक चैलेंज आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा निश है, उसमें स्किल ओरिएंटेशन है, तो स्किल ओरिएंटेशन हर कोर्सेज के लिए नहीं चल पाता। तो देन यू हैव टू हैव सम फिजिकल यूनिट। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपके साइंस सब्जेक्ट है उसमें नेचुरली आपको लैब चाहिए, उसको आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन एजुकेशन की एक लिमिट है, उस डायरेक्शन में आप सोच सकते हो, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आप जिनको कर सकते हो, बट डिपेंड करता है क्लास साइज, आपका इंटरेक्शन साइज, आपके पास टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी चीजें। जैसे हमारा मेरे कई सारे कोर्सेज जो होते थे, मैं कई कोर्सेज हैं जो हम लोग यूएस में ब्लैक बोर्ड और कैनवास, एक सिस्टम है जो एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इनको हम लोग यूज करते थे। उसमें सारी फैसिलिटीज मौजूद थी। उसमें हम पीयर ग्रुप डिस्कशन भी करते थे, उसमें फेस टू फेस भी होते थे, उसमें क्वेश्चन फोरम भी होते थे, उसमें ग्रेडिंग भी होती थी, इवैल्यूएशन भी, सारा उसी पोर्टल के अंदर मौजूद होता था। तो कभी आपको टाइम मिले तो आप जाके उसको गूगल करोगे तो आपको फैसिलिटीज पता चले। मींस दीज आर द थिंग्स। तो आपको आप उसको उस डायरेक्शन में आप सोच सकते हो। तो अभी जो एलएमएस है, आप जैसे फ्री एलएमएस है, आप गूगल है तो गूगल की अपनी गूगल क्लासरूम, उसकी लिमिटेशन से आप उसको इतना यूज नहीं कर सकते, उसमें वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है काफी हद तक जो हम करते हैं। तो अगर आप प्रमोट कर रहे हो, तो आप एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो या ऑनलाइन एजुकेशन को, तो आप उस डायरेक्शन में सोचोगे कि हाँ भाई, कैनवस में या ब्लैक बोर्ड में जितनी फैसिलिटीज है वो हम इसमें डाल सकते हैं। आपने मूडल का नाम सुना होगा, मूडल फ्री सोर्स है, आप उसको अटैच कर सकते हो अपने बिजनेस के साथ में लेकिन उसकी लिमिटेशन है, आपको सोच देखना पड़ेगा कॉमर्शियलाइज जब आप उसको करोगे। सो दीज आर द थिंग्स, लाइक ऑप्शंस हैं, आपको सोचना है, और एंड देन यू हैव टू रिलेट इट विद योर ओन इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो जब इंटरेस्ट होगा जो आप करना चाहते हो जिस एरिया में, कई सारा है जो आपको, कई बार मोटिवेशन होता है जो हम अपने आसपास या अपने विद इन योर फैमिली मेंबर्स यू सी कि हमारे फैमिली में ये बिजनेस हो रहा है तो हम उसको करें, उसमें कोई गलत थोड़ी ना। तो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है देन गो अहेड, अगर आपका इंटरेस्ट किसी और एरिया में, उसमें जाइए। तो वर्सटैलिटी आप क्रिएट करते हो, आप रिलायंस ले लो, आप महिंद्रा ले लो, कोई भी ले लो, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, जितनों को वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितनों में उनको ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं उतनों में जाते हैं। पेट्रोलियम्स भी है रिलायंस का, और आपका मोबाइल फोन्स भी है। तो then you go with that options, if you see that business, if you see that future, or if you see that I can invest and I have those skills, or I can arrange those skills। नेचुरली आपको काम नहीं करना, लेकिन आपको स्किल सेट तो लाना ही लाना होगा। तो अगर वो स्किल सेट मिल जाएगा, आप कर सकते हो, देन यू कैन प्रमोट योर आइडिया। सो दिस इज हाउ इट योर आइडिया, होल आइडिया इवॉल्व्स एंड रिफाइन। सो कई बार बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी उसमें एडिशन और मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं पूरे मॉडल के अंदर आपके। ठीक है, तो देर इज वन मैट्रिक्स दैट वी यूज, काफी उसको यूज करते हैं मॉडल बनाने के लिए। उसको हम एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा आपको। दिस इज कॉल्ड एज ए रिफ्रेमिंग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्रिएटेड बाय माइकल मॉर्गन इन 1993। इस मैट्रिक्स में एक्चुअली कि हाउ वी लुक इनटू द प्रॉब्लम्स। तो जो आपका इशू है, ब्रेन स्टॉर्मिंग और इन सब का ही तरीका है कि आपका जो आइडिया है वो कैसे जनरेट करोगे। तो सेंटर में आपका आइडिया है और उसके चारों तरफ आपका इन्वायरमेंट है। तो आपको क्या करना है, ये 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4। इन 4 ब्लॉक्स में आपको पर्सपेक्टिव्स फिल करने हैं। तो इसमें 2 अप्रोचेस है आपकी, 4 P's अप्रोच और प्रोफेशनल अप्रोच। तो किसी भी प्रॉब्लम को आप कितने एंगल से देख सकते हो, क्योंकि कई बार आप जैसे मान लीजिए आप कोई भी किसी मान लीजिए एजुकेशन में ही आप किसी टीचर के पास जा रहे हो, मैनेजमेंट एजुकेशन में आप फाइनेंस की, अगर कोई फाइनेंस का इशू है या कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तो आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जा रहे हो या वो टीचर के पास जा रहे हो जो फाइनेंस या अकाउंटिंग पढ़ाता है। तो एक सर्टेन लेवल तक तो सब बता देंगे, लेकिन उसके बाद वो स्पेशलाइज्ड एरिया में चला जाएगा। तो ऐसे कई सारे इश्यूज, तो उसका एंगल डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आप यही अगर पैसे के बारे में पूछते हो किसी मीन्स ऑटो वाले से या दुकान वाले से, उनका भी अपना एक पर्सपेक्टिव होगा पैसा कहां से आ रहा है। तो दिस इज द थिंग, लाइक मैं खा रहा हूं, मैं चॉकलेट खाता हूं, मेरा अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो चॉकलेट बनाता है उसका, मैंने तो कह दिया हाँ भाई मेरी चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी होनी चाहिए, या इसमें कैश्यू हो, इसमें बादाम हो, इसमें ये हो, इसमें वो हो, बट क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या मैं मार्केट में ले आऊंगा, क्या वे बिकेगा?
जैसे कई सारी है, जैसे इंडिया के अंदर भी डार्क चॉकलेट बनती है। अब डार्क चॉकलेट का कितना मार्केट है, डार्क चॉकलेट कितने लोग खाते होंगे? खाते हैं, अब काफी खाने लगे, बट एक समय क्योंकि कड़वी लगती, डार्क चॉकलेट है, कड़वी लगती, तो उसका एक सेगमेंट है। तो अब ये पर्सपेक्टिव, बोले मुझे अच्छी लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबको अच्छी लगती होगी। तो जो आप चॉइसेस है वो आप जब आप डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट सिचुएशंस उसको देखोगे तो आपको प्रॉब्लम डिफरेंट एंगल से नजर आएगी। तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि आपको जब दूसरे की प्रॉब्लम को समझना हो तो उसके जूते में पैर डालो तो आपको समझ में आएगा। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। आपको हर पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, आपको सेलर के पर्सपेक्टिव से, आपको बायर के पर्सपेक्टिव से, आपको बनाने वाले के पर्सपेक्टिव से, आपके एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। तो ये सारे एंगल इस पूरे मॉडल के अंदर फिक्स होते हैं जिसमें आपको उसको अरेंज करना है। तो इसे सिंपल एनालिसिस 4P अप्रोच है। सबसे पहली 4P अप्रोच में आपके पास 4 पर्सपेक्टिव होते हैं। एक आपका प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव है, एक प्लानिंग पर्सपेक्टिव है, आगे और बताता हूं मैं आपको। प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में अब आपका मान लीजिए ये आप पूरा मॉडल क्रिएट करोगे तो इस पूरे मॉडल में यहाँ पे प्रोडक्ट एक जगह आपका प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव आ गया, प्लानिंग पर्सपेक्टिव आ गया, ऐसे पीपल आएगा और पोटेंशियल आएगा। तो ये आपने आपका क्रिएट किया। अब वहां पर लिखना शुरू करिए आप कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, आर देयर एनी प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट? अब जो चॉकलेट है, क्या चॉकलेट के साथ वाकई में कोई प्रॉब्लम है? सब तो बिक रहा है, ठीक ठाक बिक रहा है। क्या ऐसी कोई बात है लोग चॉकलेट नहीं पसंद करते? पसंद नहीं करते तो क्या नहीं पसंद कर सकते? क्या सही बिक रहा है? क्या अगर मैं खरीद रहा हूँ क्या इसके प्राइसेस ठीक है? कंपटीटर कितने देख रहे हैं? अगर मैं कैडबरीज नहीं ले रहा हूँ तो नेस्ले ले रहा हूँ, अगर नेस्ले ले रहा हूँ तो कैडबरीज क्यों ले रहा हूँ? कौन से ब्रांड का, नेस्ले का कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी चॉकलेट का फ्लेवर मैं कैडबरीज से रिप्लेस कर सकता हूँ? कौन सा कैडबरीज का नेस्ले से रिप्लेस हो सकता है? या हर्शीज है, जो हर्शीज का कौन सी चॉकलेट मैं उसको चेंज करता हूँ? रॉचेस्टर कौन सी चॉकलेट में रिप्लेस कर सकता हूँ? ये सारे आपके पास ऑप्शंस है। आप उनको पास जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा पूरा प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। हाउ वेल डज इट सर्व टू द टारगेट मार्केट? क्या वाकई में लोगों को जो चाहिए वो चॉकलेट है? क्या क्या वाकई में वो फ्लेवर वो दे पा रहे हैं, या केवल लोग इसलिए खा रहे हैं क्योंकि कुछ और अवेलेबल नहीं है? क्या हम कुछ और मार्केट में लाएंगे तो वो खाना पसंद करेंगे, तो वो फ्लेवर्स मौजूद करेंगे या नहीं करेंगे? या बहुत समय पहले मिल्क चॉकलेट उन्होंने बनाया था, मिल्क चॉकलेट पॉपुलर नहीं हो पाया नेस्ले का। मिल्क चॉकलेट का उसका बहुत ही प्योर मिल्क जैसा फ्लेवर था, काफी समय पहले आया था। लेकिन अगर क्योंकि मिल्क ड्रिंकर्स भी उस समय कम थे, तो प्योर मिल्क का उसमें फ्लेवर तो थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा तभी तो आदमी पसंद करता है। प्योर मिल्क में घर के अंदर भी लोग प्योर मिल्क के साथ फ्लेवर चीनी या कुछ और उसमें डालते हैं, चॉकलेट डालो या कुछ और चीजें डालो। तो ये आप ऑप्शंस है। ऐसे ही जैसे आप किसी प्रोडक्ट के साथ सोचते हैं, एक कहलाता है मिक्सिंग या एडिशन। तो एडिशन क्या होता है कि आपका जो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट के साथ दूसरे को मिक्स कर देते हो। जैसे विटामिन वाटर, मिनरल वाटर, अरे पानी तो वैसे ही पानी मिल रहा है भाई, उसमें आपने क्या किया, मिनरल वाटर कह रहे हो या आप उसे विटामिन वाटर कह रहे हो। ठीक है, तो वो विटामिन वाटर क्या, आपने एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है उसके साथ में दूसरा आपने उसको मिक्स कर दिया एंड दैट मेक्स इज मोर सेलेबल। तो आप उसको सेल कर पा रहे हो कि हेल्दी है ये है, आप उसको बना सकते हो। तो दैट इज मिक्सिंग। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आप प्रोडक्ट के डायरेक्शन में सोचोगे तब आप सोचोगे, आप डिलीशन कर सकते हो। तो जैसे आपका मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का प्रोडक्ट में के डायरेक्शन में साले प्रोडक्ट है, आपने एडिशन क्या किया, बोले इसमें 48 मेगापिक्सल है, इसमें 58 मेगापिक्सल कैमरा हमने लगा दिया, इसमें क्वाड कैमरा है, इसमें ट्रिपल कैमरा है। तो आप उसमें एडिशन करो या डिलीशन करोगे। कोई नया मॉडल निकाला, आपने उसमें क्वाड की जगह पे आपने उसको ट्रिपल कर दिया और उसका आपने उसको रैम बढ़ा दिया। तो एडिशन भी किया, डिलीशन भी किया। तो जब आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे तो वो आपका प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव आएगा। तो लेकिन आपका क्वेश्चन है कि आप वो क्यों कर रहे हो? क्या लोगों को क्वाड कैमरा चाहिए, क्या लोगों को ट्रिपल कैमरा चाहिए? अब कई सारे ऐसे जब लोग कंपेयर करना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन में, तो कैमरा आपने भले ही कह दिया 48 मेगापिक्सल, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि कैमरा की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आईफोन में लोगे उसकी कैमरा की क्वालिटी वही 12-13 मेगापिक्सल भी उसका बहुत अच्छा उसकी फोटोग्राफी आ जाती है कंपेयर टू दी अदर फोन 16 और 24 मेगापिक्सल। अगर किसी और को फोन कंपेयर बेस्ड ऑन दैट क्वालिटी ऑफ दैट कैमरा। तो ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। और ब्रांड लॉयल्टी नो डाउट होती है आईफोन के साथ या किसी मॉडल होगा, इट्स ब्रांड लॉयल्टी। इज इट रिलायबल टू द कस्टमर? क्या वो उनको वो चाहिए रिलायबल, क्या वो दे एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस? तो ये प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर ये सारी चीजें आपकी अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप सोच सकते हो। जैसे पहले एक टाइम था मोबाइल फोन के साथ में आपको वो हेडफोन और वो चार्जर और ये सारी चीजें, कई सारी चीजें मिलती थी। आज के डेट में सिर्फ चार्जर देते हैं, हेडफोन कोई नहीं देता, बहुत रेयरली हेडफोन मिलते हैं आपको।
तो वो डिलीशन हो गया, क्योंकि वो पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर द, अब आप उसमें चल रहा है स्टीरियो फोन और मूवी। अब नाउ यू कैन इमेजिन मोबाइल फोन का काम क्या है? मोबाइल फोन का काम है बात करना, मैसेजिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। मूवी का उससे क्या लेना देना, गेमिंग का उससे क्या लेना देना, या आप दूसरे ऑप्शंस का उससे क्या लेना देना, लेकिन वो उसके साथ में उसको अटैच करके उसको वैसे सेल किया जा रहा है। इसीलिए उसका साइज देखे 6.7 से 6.5 इस साइज के आपके जो मोबाइल फोन से या कैमरा से, पर्टिकुलरली मुझसे पूछो, मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको कैरी करना। तो बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अगर आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे लिए वो ठीक नहीं, तो मुझे नहीं समझ, मेरे लिए वो कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो मैं उसको सिर्फ उसी पर्पज से यूज करूंगा। आई डू नॉट सी मूवीज। लेकिन जब आप मार्केट सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम लोग उसमें, और ये होता है। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते समय आपके पास लैपटॉप कैरी नहीं करा, मोबाइल फोन है, आप टाइम कैसे काटोगे? भैया आपने उसमें गेम देखना शुरू करा, आपने उसमें मूवीज देखनी या यूट्यूब या भी आप उसमें करोगे। पहले से बहुत सारे लोग के ये हुए, मेरे साथ के थे, वो सेव करके उसमें डाउनलोड करके सेव करके जाते थे मूवीज और ये सारी चीजें, कि यार रास्ते में हम उनको वही देखेंगे। अब वो डिपेंड करता है। अब उसके लिए आपको उसके बैकअप बहुत स्ट्रांग चाहिए, बैटरी बैकअप बहुत स्ट्रांग चाहिए। आप कभी देखना, मींस दिस इज हाउ इज अंडर, आप कभी जाना, आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज मिलेंगे। खासतौर से आप इसमें जाओ, जितने भी ऑन आपकी ई शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, अमेजन है या फ्लिपकार्ट है या मीशोज है, जियो, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसमें आप जाना, उसमें प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज देखना आपके, ये क्वेश्चंस पूछना, उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं। तो फ्लिपकार्ट में नीचे क्वेश्चंस पूछते, तो मोबाइल फोन का है नीचे क्वेश्चन होगा, कैन वी प्ले फ्री फायर? अरे मोबाइल फोन में ये क्वेश्चन आता है, फ्री फायर का। बहुत सारे, कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है इसमें गूगल प्ले है या प्ले स्टोर है भी कि नहीं है, या एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन चल रहा है। ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्ले स्टोर है इसमें, या इसमें हेडफोन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो थिंग्स आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको, यानी अभी भी लोग हैं। अब वो अलग बात है कि उनको पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, देन दे ट्राई टू आस्क, एंड अगर वो उनको उस पूरे पैकेट में या पूरी इंफॉर्मेशन या पूरा प्रोडक्ट उनको अवेलेबल होता है, नेचुरली सेल बना सकते हो, कंपटीशन तो है। देन इज योर प्लानिंग पर्सपेक्टिव, आर द बिजनेस मार्केटिंग सेल्स प्लान प्रिपेयर, डू वी हैव द राइट स्ट्रेटजी, हाउ कुड वी इंप्रूव दिस। अब यहाँ पर जब से मैंने बात किया आपका ई बिजनेस, ई कॉमर्स का, तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, आप कैसे सेल कर रहे हो, ये आपके सेल प्लान्स का हिस्सा होता है। कि आप पहले एक कि प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। जैसे बहुत समय पहले पेंटालून जो ड्रेस मेकिंग है, पेंटालून क्लॉथ मेकिंग, ये आपका टेक्सटाइल का ट्राउजर्स और शर्ट्स ये सब बनाते थे। तो इन्होंने पहले, बहुत पहले, काफी पहले इन्होंने डोर टू डोर सेलिंग स्टार्ट किया था। मतलब सेल्समैन जाते थे घर टू घर और जाके बेचा करते थे। बहुत बुरा माना गया, यार ये पेंटालून जैसा ब्रांड ये सब काम कर रहा है, बट दे जनरेटेड द मार्केट, दे, और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को वो आइडिया दे दिया कि हाँ हम भी इसको ऐसे कर सकते हैं। तो उस समय पे आपका ये यूरेका फोर्ब्स की जो चलता था, यूरेका फोर्ब्स के लोग भी आते थे उस समय, सिंगर के भी आते थे। अब वो उतना देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब आपकी डेट में आपके पास ई कॉमर्स है। तो अब डोर टू डोर जाने की जगह ई कॉमर्स आपके पास अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम ये होती है, जब ई कॉमर्स है तो उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है, भाई हम उसको ट्रायल कैसे करेंगे? तो ट्रायल के लिए ऑप्शन दिया गया, चलो आपको एक हफ्ते का ट्रायल का, बहुत बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स, वो एडिशन। तो ये आपका प्लानिंग स्ट्रेटेजी, ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि अब ट्रायल का ऑप्शन है ना, अब शूज है, कपड़ा है, या आप ट्रायल करने के बोले, कई ना एक वीक का ट्रायल का ऑप्शन दिया, बोले आप एक हफ्ते रखो, ट्राई करो, पसंद आ जाए तो रख लो, चले जाओ। अब उसमें रिटर्न का भी है। कई बार फेस टू फेस आप सेलिंग का एक बहुत बड़ा प्राइमरीटर ये है कि आप जब ई कॉमर्स में या उसमें पोर्टल पे सेल करते हो, तो आपको ऑप्शन इसलिए मिल जाता है क्योंकि आप उसे रिटर्न कर सकते हो। ये आ रहे ऑप्शन आपके पास ज्यादा मौजूद है इन कंपैरिजन टू दुकान पे जाओगे, अरे भैया वापस कर लो, दे जाएंगे, ये वो, अभी दोस्ती आ रही है तो वापस कर देगा, या कितना वापस करते हैं, यूज किया कितना। तो रिटर्न पॉलिसी एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप उसे, तो दिस इज पार्ट ऑफ योर योर बिजनेस आइडिया। तो आप जब बिजनेस आइडिया डेवलप कर रहे हो तो उसमें आप ये सोचो कि मुझे अपने इस प्रोडक्ट को कहाँ बेचना हो, किस तरीके बेचना है, कहाँ से मुझे सेल ज्यादा मिलेगी। अब उसमें नेचुरली जब आप करोगे तो उसमें कमीशन शेयरिंग होगा, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको कॉस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देन इज योर पोटेंशियल एंड पीपल पर्सपेक्टिव। अब इसमें हाउ इन टेकिंग इन पोटेंशियल, हाउ वुड वी इंक्रीज द सेल्स ऑफ द वी और इंक्रीज टू टारगेट, हाउ वुड यू अचीव? तो ये दिस इज लुकिंग फॉर द फ्यूचर।
पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? ठीक है, ई कॉमर्स से कर दिया, अब हम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना काम चलेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा। अब जैसे मोबाइल फोन के लिए आप कई बार क्या करते हैं, आप कंपनीज में जाके बल्क ऑर्डर्स होते हैं, कंपनीज में लोग बेचते हैं, सिम कार्ड्स बेचते हैं, ऐसे स्कूल कॉलेज का पूरा ग्रुप फोन्स बेचते हैं। तो ये स्ट्रेटजी, पोटेंशियल स्ट्रेटजी, जिससे आप मार्केट को डेवलप कर सकते हो। तो ये एडिशंस हैं जो आपको पैरेलली अपने पास में, अपने साथ में सोच के रखना पड़ेगा कि हाँ, वी कैन डू लाइक दिस और वी कैन डिफाइन लाइक दिस। Then pupil perspective, what impacts do people have on the problem? Who are the people involved? What do people involved in the people? इसमें customers नोट, इसमें आपको दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना है, इसमें आपको एम्प्लॉय से भी सोचना है, इसमें आपको कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी सोचना है। तो अगर आपको मींस किसी भी प्रोडक्ट को या बिजनेस को रन करने के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय के साथ वो डेटा सेट, वो सॉरी स्किल सेट उनके साथ है कि नहीं, स्किल है तभी तो आप उसको कर सकते हो। अब स्किल नहीं है तो आप उसको इंप्रूव करोगे, कैसे स्किल इंप्रूव करोगे, उस स्किल इंप्रूव करने का कॉस्ट कितना आएगा, अगर हमने स्किल को इंप्रूव किया तो आगे क्या होगा। तो दिस इज द वे, लाइक एक बहुत रिसर्चर है, जेफरी विफर का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और एचआर के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बहुत सिंपल सी एक चीज कहा कि कंपिटिटिव एडवांटेज, किसी भी कंपनी का कंपटीशन, आप नॉर्मली आप कहोगे प्राइस है, प्रोडक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू हिम द पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप कंपनीज में, कंपनी टू कंपनी, ए कंपनी बी कंपनी, दोनों के बीच में आप कंपटीशन है, तो ए का मॉडल बी कॉपी कर सकता है, एक ही ब्रांड बी मींस एक ही टेक्नोलॉजी बी कॉपी कर सकता है, ए का प्रोसेस बी कॉपी कर सकता है, लेकिन ए के प्यूपिल को कॉपी नहीं कर सकता बी। तो प्यूपिल इज द मोस्ट डिफिकल्ट एलिमेंट विच इज डिफिकल्ट टू बी इमिटेटेड एंड कॉपीड। आप लोगों को कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते एक एरिया से दूसरे एरिया। ए के जो लोग हैं वो हैं, उनकी स्किल्स, उनका बिहेवियर, उनका सेट आप कभी भी बी में कॉपी नहीं कर सकते। उनके जैसा यही सोच सकते हो, उनके जैसा वैसा एज इट इज नहीं। सो दैट इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कंपटीशन टू डेवलप ए कंपिटिटिव एडवांटेज। अगर लोग आपके मोटिवेटेड हैं, थिंग इज कि आप वो कैसे डेवलप करोगे, वो पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप। सो व्हेन यू आर जनरेटिंग दैट आइडिया, यू हैव टू थिंक ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कितनी सैलरीज मिलती हैं, कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, कितने ऑप्शंस मिलते हैं। अब आप ये भी सोच लो कि आप अगर नौकरी कर रहे थे, आप जॉब कर रहे थे, आपने जॉब छोड़ के बिजनेस किया, बिजनेस इस वजह से किया कि भाई मुझे जॉब में मजा नहीं आ रहा था, बॉस को सुनना पड़ता था, जवाब देना पड़ता था, सैलरी नहीं, प्रमोशन नहीं, या इस तरीके की चीजें, जो भी थॉट थे वो आपके दिमाग में सारे आ रहे थे, और उनके बाद आपने शिफ्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। अब आप खुद सोचिए, अब आप एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, वो भी तो ऐसे ही सोच रहा होगा आपके लिए। So this is why मैंने बिगिनिंग में आपसे कहा, बी ऑब्जर्वेंट एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ, सी विद इन। आप अपने अंदर देखो, खुद से देखो, बहुत सारे सोल्यूशन तो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से ही मिल जाएंगे। तो जो मेरे साथ नहीं हुआ वो मैं दूसरों के साथ नहीं करूंगा, या जो मेरे साथ हुआ है मैं दूसरों के साथ नहीं करूंगा, वही सारी फैसिलिटी जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं उनके साथ बात करूंगा। बट यू हैव टू टेक इट इन लॉन्ग में। शॉर्ट टर्म में ठीक है आप कर लोगे, बट लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा। लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2 हफ्ते में, 2 महीने में छोड़ जाएंगे, 1 साल में छोड़ जाएंगे, 2 साल में छोड़ जाएंगे। और आजकल वैसे भी टेन्योर बहुत छोटा हो गया, जॉब टेन्योर। पहले एक समय पे जॉब टेन्योर 5 साल 10 साल हुआ करता था, पुराने टाइम पे तो पूरा सरकारी जॉब के अंदर तो पूरा पूरा रिटायरमेंट उसी में हो जाता था। फिर धीरे धीरे जॉब टेन्योर 10 साल का हो गया, फिर 5 साल का हो गया। आजकल जॉब टेन्योर 2 to 3 years है। बहुत नॉर्मली 2 to 3 years के अंदर लोग बहुत फ्रिक्वेंटली शिफ्ट करते हैं इधर से उधर। और रीजन है, उनको अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, उनको सैलरी हाइक चाहिए कई बार, और बहुत बड़ा फैक्टर है वो प्रमोशन उनको नहीं मिल रहा है उस कंपनी के अंदर, तो वो हाइक ले लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, या कोई और भी रीजन है। एक बहुत कॉमन स्विच है, ये कॉमन है, बट स्पैन छोटा हो गया। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं, बट स्पैन छोटा हो गया। तो दिस इज हाउ, क्योंकि हर कोई अपने बेनिफिट के लिए सोच रहा है ना। आप अगर अपने एज एन एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के लिए सोचते हो, तो एज एन एम्प्लॉय वो भी तो अपने लिए और अपनी फैमिली और अपने सबके बेनिफिट के लिए सोचेगा। तो नोबडी, हम लोग उसमें एचआर के अंदर कहते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में, नोबडी इज मैरिड टू एवरीवन, नोबडी इज मैरिड टू एनीवन। उसको एम्प्लॉय को अच्छा फैसिलिटी मिलेगी वो चला जाएगा, और जिस दिन एम्प्लॉयर को एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा एम्प्लॉय का, उसे वो एम्प्लॉय खराब लगने लगेगा।
सो वो पूरा सीन क्रिएट हो रहा है, इसको हटाओ किसी तरीके से उस वाले को लेके आओ, दैट डिपेंड्स। सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं है, देयर आर क्वालिटीज, पीपल स्किल्स, पीपल बिहेवियर। अगर आप अटैच हो, वो कमिटमेंट है, वो ऑप्शंस वो कंट्रीब्यूट करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज वेरी वेल एंड गुड। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो दैट जितने भी आपके उसके थॉट्स हैं, कस्टमर्स की जितनी भी टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, जो उनको चाहिए, दैट यू हैव टू राइट एंड व्हाई दे डू नीड दिस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो वो सारे आप इसके अंदर जो आपका मॉडल है, इस मॉडल के अंदर देन यू विल एस्टैब्लिश हियर। अब जब ये आपके सारे चारों मॉडल आपके क्रिएट हो जाएंगे, चारों आपके एलिमेंट्स, जितनी भी लिस्ट आप उसके अंदर कर सकते हो, प्यूपिल के अंदर, पोटेंशियल में, प्रोडक्ट में और प्लानिंग में, जितने भी आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो, वो सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको कंप्रोमाइज करने में, आपको ब्रेनस्टॉर्म करने में इजी होगा, आपको ब्रेनस्टॉर्म करने में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाएगी, क्योंकि दिस इज हाउ यू आर लुकिंग फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और कोई भी बिजनेस है वो सिंगल नहीं होता, वो इसमें सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो कोई एक यूनिट है। बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट यू, बिजनेस इज अबाउट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। खाली आप चाहोगे आप अकेले करते रहोगे, कुछ समय बाद अपने आप ही बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं। जब अगर आप कस्टमर को फायदा नहीं देते, अगर आप इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं देते, अगर आप गवर्नमेंट को, इन्वायरमेंट को फायदा नहीं देते, अगर आप इन सब बेनिफिट को सेट, ये सारे बेनिफिट्स अगर आपके नहीं है आपके आसपास चारों तरफ, इन्वायरमेंटल बेनिफिट या आपके जो स्टेक होल्डर बेनिफिट्स, तो नेचुरली आपका बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। Then is your next you have that professional approach. In professional, अब यहाँ पर अलग अलग है कि आपके look on the problem for different perspective from different professionals. अब प्रोफेशनल ये अब मान लीजिए हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं, तो चॉकलेट में प्रोफेशनल है कुछ भी, तो एक चॉकलेट बनाने वाला, दैट इज अ प्रोफेशनल। कि खाने वाला बनाने वाला, अब कई बार ऐसे पर्सनल लाइफ के अंदर भी होता है कि आप जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो एक मान लीजिए आपका फ्रेंड है, वो शेफ है या वो प्रोफेशनल कुक है, तो वो डिफरेंट तरीके से बातें करे, या इसमें ये फ्लेवर, इसमें इलायची और डालते, इसमें लौंग और डालते। आपको क्या, मैं अगर मैं हूं तो मैं तो सब खाने से मतलब, हाँ पेट खुश जबान खुश। तो दैट इज द थिंग, द पर्सपेक्टिव अपने आप डिफरेंट हो जाएगा। तो जब वो इस तरीके से सोचेगा कि मैं लौंग डालता, इलायची डालता या ऐसी चीजें डालता, तो वो अब मेरा फ्लेवर चेंज हो सकता है या मेरा उसको डिजाइन डिफरेंट है। एक बहुत सिंपल, तो बहुत पहले एक बिजनेस आइडिया था, एक चला था, एक नॉर्थ इंडिया से एक बंदा था, वो आईआईटी चेन्नई में पहुंचा था। अब वो हमेशा फैमिली में रहता था, तो घर का खाना खाया उसने, आईआईटी चेन्नई पहुंचा, तो वहां पर वो बड़ा और डोसा और ये सब ज्यादा मिलता था, तो वो मिस करता था अपने घर के खाने को। तो उसने बहुत कोशिश करी अपने बनाने को, खुद कुक करता था, बनाता था। कुछ दिनों बाद उसने क्या किया, अपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया उसने, और उसका नाम उसने मदर्स किचन रखा था। तो मदर्स किचन, दैट ऑटोमेटिकली अफेक्शनेट हो जाता है, उसके साथ रिलेट कर देता है, तो उस ऑप्शन के साथ, उस फ्लेवर के साथ, टेस्ट के ये उसी लिए आया क्योंकि उसने उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचा था। उसने सिर्फ खाने के पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं सोचा, उसने यूजर के पर्सपेक्टिव से, उसने जो बनाने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से सोचा ना। लेकिन ये ऐसे ही आप एजुकेशन में या ऑनलाइन एजुकेशन में आप जा रहे हो, तो ऑनलाइन एजुकेशन टीचर के पर्सपेक्टिव से आप सोचो, आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो, आप जो टेक्नोलॉजी उसको बना रहा होगा, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी हैंडली होनी चाहिए। जैसे अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रहे हैं, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, जो इसके पीछे बैकएंड है या जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, उसकी कॉस्ट बेनिफिट वो सब वो बता पाएंगे। तो जब वो पूरी टीम आपके साथ बैठेगी, तो उस टीम के साथ आपको रियल इंफॉर्मेशन, रियल मींस आपको चैलेंजेस मिलेंगे फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, चैलेंजेस प्लस सॉल्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उन चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को आप मैच करके देन यू कैन बिल्ड एंड मेक दिस योर कंप्लीट मैट्रिक्स। और फिर उसमें फिर आप उनको प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे इन मैट्रिक्स को आप सिर्फ यहीं तक आप इसको लिमिट नहीं कर सकते, इस मैट्रिक्स को आप और भी तरीके से बना सकते हो, आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट बना सकते हो। जैसे एक आपका प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपका जैसे फॉर एन एग्जांपल पेपर है, पेपर इंडस्ट्री, आप पेपर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो पेपर के लिए आप यूजर का पर्सपेक्टिव से अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है, तो उसमें कस्टमर्स भी हैं, स्टूडेंट्स हैं,
पेपर आपका इंडस्ट्री के अंदर भी जाता है, पेपर आपका दूसरे रैपिंग और इन सब के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे आपके डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजर भी हैं, आपके कस्टमर्स भी हैं, आपके इंडिविजुअल यूजर्स भी हैं, आपके बल्क यूजर भी हैं, और हर यूजर की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। जैसे इंडिविजुअल को खरीदना है तो 10 रुपए की कॉपी या 10 रुपए की शीट मिलती है, एक मतलब 1 मीटर शीट हमने ले ली, 1 स्क्वायर मीटर शीट हमने ले ली। हमारे लिए उतना मैनेज मतलब मींस पैसा उतना शायद नहीं इफेक्ट करेगा। हाँ, देखेंगे पॉकेट के हिसाब से, इकोनॉमिकली जरूर देखेंगे, बट आप सोचो उसके लिए जो उसको 1000 स्क्वायर मीटर अगर ले रहा होगा तो उसके लिए तो बल्क में जा रहा हो, उसके लिए तो बेनिफिट उसको डिस्काउंट तब लेगा क्योंकि उससे उसको यूज करना फर्दर, तो वो फर्दर जाएगा। तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। अब उसको रैप कैसे को, यहाँ तो आप गए अपने शॉप में गए, 1 मीटर स्क्वायर मीटर आपने दे दिया और उसको लेकर चला गया, लेकिन आप जब 1000 स्क्वायर मीटर आप उसको लेके जाओगे, उसको डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, वो ट्रांसपोर्टेशन कौन होगा, तो वो आपके प्लान के अंदर अपने आप ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो भी आप आइडिया जब जनरेट कर रहे हो, आइडिया जनरेट करने के लिए ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, जिन पर्सपेक्टिव्स को आपको बिजनेस के अंदर इंक्लूड करना होगा, और उन पर्सपेक्टिव्स को जब आप इंक्लूड करोगे तब आपको डिफरेंट चैलेंजेस और सॉल्यूशंस मिल सकते हो, और हो सकता है कि उनमें से मींस इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव आपको कोई और नया बिजनेस आइडिया भी मिल जाए। तो ये एक समरी थी बिजनेस। ऐसे कई सारे मॉडल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। मैंने कोशिश किया एक सिंपल छोटा मॉडल यूज करने के लिए, जनरेट करने के लिए। आप इन्वेस्टर्स के फाइनेंसिंग के पर्सपेक्टिव से भी आप इसको ऐड कर सकते हो कि कहां से पैसा मिलेगा, किसको कितना देना है। एंड यस मींस इसको आप बनाओ, इसको आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप बता सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं, अपने पीयर ग्रुप्स अपनी क्लास में दे सकते हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो क्लोज ग्रुप ऑफ कोर्स जिनके साथ आप शेयर करना चाहोगे या सबके साथ करना चाहो बिल्कुल करो। अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हो, आप ई सेल में मैडम के साथ शेयर कर सकते हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपको पर्सपेक्टिव मिलेंगे, टीचर्स के पर्सपेक्टिव मिलेंगे, अपने फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव मिलेंगे, वो भी तो यूजर्स हैं, वो भी तो ऑब्जर्वेंट हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से आपको और इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज इट। मींस ये छोटा सा, आई वाज ट्राइंग टू मेक दिस स्मॉल एंड कंसाइज। Okay, now I would like to request Dr. Vibha Singh, ED Cell Chairperson, to give some vote of thanks to our honorable speaker, Dr. Saurabh Gupta. Over to you, ma'am. Thank you, Kishan. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Thank you so much, sir. You have given a very practical session for our students, and so many faculties were also associated with you. Thank you. So the examples which you have shared with us, either from chocolate to education or to kitchen to paper, was really very, very familiar to all of us. This will surely motivate our students to think about some business, can generate idea, and in future, instead of taking job from others, they can be job givers. And the brainstorming which you advise them, that they can share their perspectives with their teachers also, and their friends also, and their relatives, their family members. This is really very practical. If we are limited to oneself, we cannot become an entrepreneur, or we cannot justify the status of our ideas. Really, the things who are very close to us, only we have to plan, we have to think in that direction, and I hope approx 300 plus students were with you, and this session was really marvelous. Thank you so much. Thank you so much for sparing time for our students. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Thank you to the organizing team also, Mr. Jiten, Mr. Neeraj, the creative team, Madam Manisha. Thank you to Kishan, who organized this session very well. Thank you, everyone. Thank you, sir. Be with us in offline classes also. Sure, ma'am. Thank you very much. Thank you.